Hello, my dear children. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of rectification of errors. When an accountant commits the mistake in recording the transactions, whether the errors are one-sided, affects the trial balance, and the trial balance does not tally. After locating the errors, how these are rectified, the practical questions given in your books. Question number 28. I would like to explain before you how these errors are rectified. One thing I would like to tell you just on the rectification of errors. We have to consider first the errors that has taken place, what types of the errors, whether it affects the trial balance or not, whether the errors taken place in recording affecting the trial balance, that will be the one-sided errors. And the errors which do not affect the trial balance will be the two-sided errors. Through the practical question, what are the procedures? What is the method that is being explained? Listen it carefully. In question number 28, you can see, open your book. A bookkeeper finds the difference in the trial balance amounting to rupees 210 and puts it in the suspense account. Means when the trial balance was prepared, just the bookkeeper finds the difference. I mean to say, the trial balance does not tally, and he put the difference amount in the debit column of the trial balance. Later on, he detects the following errors. Rectify these and prepare the suspense account. What are the errors? First, that one given, goods purchased from Ram rupees 700 was passed through sales book. First, we have to make our concentration. Such errors just will affect the trial balance or not. This one is the two-sided errors or one-sided errors. Because of that, goods purchased from Ram rupees 700 was passed through sales book, means entered in the sales book. Now, because of that, sales book also debit credit, double entry system, purchase book also debit credit. So this one is the two-sided errors. It will not affect the trial balance. So how this will be rectified
The procedure I would like to tell you. First, the correct entry. You can write the correct entry this way. Then after the rectification entry, just the correct entry. Correct entry and wrong entry. Wrong entry. Here you can write the correct entry and there you can write the wrong entry. What is the correct entry? What will be the correct entry? Goods purchased from Ram. Means correct entry, purchase account debit. Purchase account debit to Ram. This one is the correct entry. But the wrong entry taken place in recording the transactions, that is Ram debit to sales. Ram debit to sales. Now here you can write the rectifying. Rectifying entry. Procedure I would like to tell you. The correct entry that is given, purchase account debit to Ram. Wrong entry, there is no purchase and the Ram should have been credited. That is debited over here right now. So, and sales credited. No need of sale because of this one is the purchase and the errors are detected by the accountant. So rectifying entry will be purchase account will be debited. There is no entry for the purchase. In rectifying entry, purchase account debit. We can write this. Purchase account debit. Purchase account debit. And you can see over here Ram should be credited and sales. Here this one is the credited in excess amount. Whether that is credited in rectifying entry, that should be debited. So you can write over here sales account debit. Sales account debit to Ram should be credited to Ram. Now you can see, my dear, in Hindi I will also explain whether there is no entry for the purchase, so purchase debited and sales in wrong entry credited, that should be debited also, and the Ram incorrect entry will be credited, so to Ram in rectifying entry. What's the easy procedure in two-sided debit? Just you can write the amount. What's the amount given? 700. So you can write over here 700, then after the 1400. Means the Ram will be credited by the rupees of 1400. In Hindi you can see, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, अगर जो टू साइडेड एरर है तो एक तरफ करेक्ट एंट्री लिख दिए, सही एंट्री क्या होगी, और दूसरी तरफ रॉन्ग एंट्री जो हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं करेक्ट एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये सही होना चाहिए था, लेकिन से अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम कैसे सुधार करें कि जो डेबिट है
उसे क्रेडिट करते हैं और जो क्रेडिट है उसे डेबिट करते हैं। और जिसका नहीं नाम आया है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट करेक्ट एंट्री से पता लग जाएगा। तो परचेज का कहीं रॉन्ग एंट्री में नाम नहीं है और यही होना चाहिए था। तो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स यहाँ देख रहे हैं रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट है, तो इससे जब निकालेंगे तो इसे डेबिट कर दिए और रॉन्ग यहाँ पर डेबिट है तो इसे यहाँ क्रेडिट कर दिए और अमाउंट आपका 1400 हो गया। 700 परचेज में डाल दिए, 700 जो है आप सेल्स से निकाल दिए डेबिट करके और राम को 700 का क्रेडिटर आपने बना दिया क्योंकि यहाँ डेटर हो। क्लियर? ये ऐसे किया जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन देखें आप, रिटर्न गुड्स टू श्याम ₹1500 वाज पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड्स। ये भी टू साइडेड हो गया। रिटर्न गुड्स टू श्याम, श्याम को आपने गुड्स रिटर्न किया है मतलब परचेज रिटर्न है, तो यहां पर करेक्ट एंट्री होगी श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न में डाल दिया रिटर्न इनवर्ड्स को। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स कहा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे जस्ट सेल्स रिटर्न डेबिट टू श्याम। ये रॉन्ग एंट्री कर दिया आपके अकाउंटेंट ने। जस्ट द मिस्टेक और टेकन से इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस बाय द अकाउंटेंट, you can see sales return debit to Shyam. Now rectifying entry, this one is the correct entry, so Shyam should be debited. You can write over here Shyam debit. अब आप इन दोनों अकाउंट्स को देखेंगे, परचेज और सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न क्या है, डेबिट है, तो इसे क्रेडिट कर दिए टू सेल्स रिटर्न, और उसके बाद परचेज रिटर्न का तो कहीं नाम नहीं आया, क्रेडिट होना चाहिए, उसको भी डाल दिए टू परचेज रिटर्न। अमाउंट वही सेम प्रोसीजर आप देख सकते हैं। अमाउंट का क्या 1500, so you can write the 1500 and 1500 3000 rupees Shyam will be debited with the amount 3000. Clear? Now the third, an item of rupees 450, an item of rupees 450 relating to prepaid rent account. Prepaid rent account was omitted to be brought forward. यह जो है छूट गया। प्रीपेड रेंट ये क्या होता है, एक्सपेंस है, डेबिट होता है, तो ये छूट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होगा। जब ट्रायल बैलेंस में आप प्रीपेड रेंट को डालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर छूट गया, तो इसका मतलब इसके स्थान पर सस्पेंस अकाउंट आपने क्रिएट किया, तब जाकर के ट्रायल बैलेंस आपका टैली किया, तो आप इस स्थान पर प्रीपेड रेंट ला जाए, आप लिखेंगे
प्रीपेड रेंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये वन साइडेड एरर है बेटा, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिमूव कर दिया वहां से सस्पेंस अकाउंट को, डिस्पोज कर दिया आपने, डिस्पोज कर दिया, क्योंकि यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट में क्रिएशन हुआ है तो इसको क्रेडिट कर देंगे तो आपका सस्पेंस अकाउंट रिमूव हो जाएगा, रेक्टिफाइड हो गया। ये रेक्टिफाइड प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हम जानते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा 450, जस्ट यू कैन राइट 450 being the errors rectified. Clear? Fourth one, an item of rupees 120 in respect of purchase return. Purchase return का है 120 का item. Instead of being recorded in return outward books, has been wrongly entered in the purchase book and posted therefrom to the debit of personal account. ये कहाँ चला गया? पर्सनल अकाउंट में। इसका मतलब समझाएं, एन आइटम ऑफ रुपीज 120 just the amount, $120 रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न का है। इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड होने के बजाय इसे कहाँ कर दिया गया? परचेज बुक में, मतलब इसे डेबिट कर दिया गया। तो अब जो आप, ये भी वन साइडेड एरर्स हो गया बेटा। कैसे? इंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, और इसे क्या कर दिया गया? पोस्टेड, उसके बाद उसे पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया। अब क्या करेंगे? तो आप जब इसकी एंट्री करेंगे तो इसका मतलब है कि 120 दोनों डेबिट हो गया, तो 240 रुपए का डिफरेंस हुआ। तो रेक्टिफाइंग एंट्री जो सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होगा क्रेडिट में, वो 120 और 120 40 का हो। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, मान लो 120, और फिर उसे पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया, तो 120 पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया। अब यहाँ पर 120 छूट गया है, ये 120 छूट गया है और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गया 120। तो आपका डिफरेंस कितने का हो जाएगा? जो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर बनेगा वो 240 रुपए हो जाएगा। 120 और 120 मिल करके 240 रुपए का। तो जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज में भी डाल दिया गया और पर्सनल अकाउंट में भी। तो आप लिखेंगे इसकी एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न में नहीं पड़ा है तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, और पढ़ के आप कहाँ गया है? परचेज बुक में। परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब आपका हो गया 120, यहाँ पर हो गया 240, 240 रुपए से सस्पेंस
को डेबिट करके जब गलती मिल गई तो हमने रिमूव कर दिया। अब पांचवा क्या है? अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 180 एंड अ न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹2000। ये आप देख रहे हैं, इनका एग्रीमेंट ये टू साइडेड एरर हो गया। अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 180, तो वो रेडियो अकाउंट में जाना चाहिए। एंड अ न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर ₹1920 वर इंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹2000। 2000 का हो गया, तो आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 180, 180 रुपये, तो वो रिपेयर अकाउंट में डाल दीजिए। एंड न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 वर इंटर्ड इन द परचेज बुक। तो आप परचेज बुक हमेशा डेबिट होती है, तो उसे क्रेडिट कर दें। यहां पर रेडियो डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सुभाष। दिस वन इज द टू साइडेड एरर्स। कितने की रेडियो सप्लाई की गई है? 2000 डाल दिया गया है, जबकि 1920 रुपए की है। तो 80 रुपए परचेज बुक में 2000 हो गया है, जबकि होना कितना चाहिए? परचेज बुक से निकालेंगे इसे, और रेडियो आपने न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹2000। तो इसे आप कितने का डिफरेंस है? 2000 माइनस 1920 रुपये, 80 रुपये का डिफरेंस है। उस 80 रुपये के डिफरेंस को आप परचेज से निकाल। क्लियर?